اور کہیں تو ہے عزیز تیرے کام سب سے عظیم. کہیں تو ہے عظیم، تو ہے عظیم، آواز تھوڑی ہے، تیرے کام سب سے عظیم. پھر سے تو ہے عظیم تیرے کام سب سے عظیم، تیرے جیسا کوئی نہیں. آپ کی بات یہ تیرے جیسا. مت شرمائے، ہاتھوں کو اٹھا کر گانا شروع کر دیجئے. وہ حضوری اتر چکی ہے اور وہ آپ کو لپیٹ رہی ہے اپنے آپ میں. جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ بھی گائیے ہمارے ساتھ. خدا کی حضوری آپ کو بھی چھو لے، آپ کو بھی بدل کر رکھ دے. تو ہے عظیم، تو ہے عظیم تیرے کام سب سے عظیم، تیرے جیسا کوئی نہیں. تیرے جیسا کوئی نہیں. آپ کی باری یہ کہیں، بلند آواز سے کہیں چرچ، تو ہے، آواز کم ہے، تو ہے، اور اسے کہیں تو ہے، ابھی بھی تھوڑی ہے، تو ہے. بھول جائیں آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے باپ کو پکاریے جو آسمان پر ہے اور اس سے کہیں تو عظیم ہے. تو ہے تیرے کام سب سے، تیرے جیسا کوئی، تیرے جیسا کوئی نہیں. تو تو جلالی زندہ خدا، زندہ خدا، تو جلالی، تو پویتر، تو پویتر، تو ہی جلالی. زندہ خدا، زندہ خدا، تو ہے عظیم. پھیڑے بولے تو ہے عظیم تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں. آئیں دعا کرنا شروع کرتے ہیں، خدا سے کلام مانگنا شروع کرتے ہیں. آئیں خدا سے کہیں خدا بول، بندھن ٹوٹیں. آج خدا بندھرا سپر نیشنل کام ہو. آج خدا بندھرے سپر نیشنل وزٹس ہو. آج خدا بندھرے سپر نیشنل حضوری کو مانگتے ہیں. لبرو شکا بادا یادی ربا لما سکا تھا شدا ربا نکھا تھا یادی سکا. خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج کا کلام ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں. جی سب کہیں جی. میرا ایمان ہے جو میں چاہتا تھا کہ روح میں وہ ہو جائے آج، تو خدا نے اس کو روح میں کر دیا ہے. آئیے سمسی کے لیے زوردار تالی بجاتے ہیں خدا کے روح کے لیے، اس کی حضوری کے لیے، اور جو کچھ اس نے یہاں پر ابھی کیا اس کے لیے. جو کچھ میں چاہتا تھا روحانیت میں ہو جائے وہ خدا نے کر دیا. اب میں اس کی حضوری میں بہت ہی ڈیپ ہو چکا کام، لیکن ہم
کلام کو شروع کرتے ہیں۔ جی آج کا جو کلام ہے اس کا عنوان ہے پروفیسیز بائی ورڈ آف گاڈ، نبوتیں خدا کے کلام سے۔ آمین۔ آج کا جو کلام ہے اس کا عنوان ہے کہ جی نبوت خداوند کے کلام میں سے۔ آمین۔ نبوت میں آپ کو پہلے بتاؤں، سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبوت کیا ہوتی ہے۔ جب ہم مکاشفی کتاب اس کا 19 باب اس کی 10 آیت لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا کہ یسوع مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ آمین۔ اب سنیں، سمجھیں اس بات کو کیا لکھا ہے بائبل میں۔ کچھ لوگ آپ یقین جانیں وہیں تک رہ جائیں گے جہاں تک ان کی سوچ ہے، لیکن کچھ جو کلام کو لے جائیں گے اتنے آگے بڑھ جائیں گے ان کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ کہیں آمین۔ خدا اتنا آگے بڑھا دے گا صرف کلام کے وسیلہ سے، لیکن کچھ لوگ صرف وہیں سٹک ہو کر رہ جائیں گے جہاں تک ان کی سوچ ہے، جہاں تک وہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ہمیں بہت آگے بڑھائے گا۔ مجھے لگا تھا شاید سب آمین کہیں گے۔ خدا ہمیں بہت آگے بڑھائے گا۔ میں آپ کو آج بالکل بھی یہ نہیں بتاؤں گا کہ باہر سیمنٹ پڑا ہے، بجلی پڑی ہے، صبح ہم کام کریں گے، یہ کریں گے، وہ۔ میں ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا یہاں پر اپنا، میں آپ کو نبوت کا کلام دینے آیا ہوں، اور آج اس نبوت کے کلام سے آپ آزاد ہوں گے یسوع کے نام میں۔ آج اس نبوت کے کلام سے ہماری زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی۔ آج اس نبوت کے کلام سے ہم بہت کچھ ایسا سیکھیں گے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ اس کے بارے میں تصور کیا ہوگا، لیکن خدا آج خادم کے وسیلہ سے اس کی ہڈیوں میں سے اور آسمان میں سے نئے مکاشفوں کو جاری کر دے گا۔ سب کہیں بلند آواز سے کہنا بچوں۔ نبوت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبوت وہ جو آپ وقت سے پہلے کسی کے لیے کچھ بول دیں اور وہ آسمان پر لکھی جائے اور وہ ہونے لگ جائے۔ آمین۔ بہت ساری پروفیسی ہیں۔ سب سے بڑی جو نبوت ہے وہ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب ہے کہ خادم کے اوپر، نبی کے اوپر خدا کی نبوت آئی کہ دیکھ ایک لڑکا دولت ہوگا، ایک بیٹا بخشا جائے گا۔ چپ کروائیں اس کو۔ ایک بیٹا بخشا جائے گا، اور پھر اس کی جو مین نبوت ہے ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتی ہے کہ جی پھر فرشتہ جو کہ ماں مریم کے پاس آیا اور مریم سے آ کر کہتا ہے سلام تجھ پر، سلامتی تجھ پر۔ آمین۔ یہ نبوت جو کہ یسایہ نبی سے بہت سال، ہزاروں سال پہلے کہی گئی اور لوکا کی انجیل میں آ کر پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 2 باب میں کہ دیکھو میں آخر کے دنوں میں ایسا کروں گا کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے۔ آمین۔ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور دیکھو تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں رویا دیکھیں گے، ویژنز آئیں گے، خواب آئیں گے۔ اور اب اگر آپ دیکھیں تو خواب نظر آتے ہیں، ویژنز نظر آتے ہیں، لوگ نبوت کرتے ہیں، اور یہ ساری نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور داؤد اپنے زبوروں میں کون سی نبوت کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو دنیا کے چاروں کونوں میں سے، آمین، دنیا کے چاروں کونوں میں سے ایک جگہ پر لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پر خدا کی ستائش کی جائے گی۔ اور آج یہ سچ ہے، آپ دیکھیں دنیا بھر میں چرچ ہی چرچ ہیں، لوگ دور دور سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور سنڈے سروس میں، جمعرات کے سروس میں، کہیں بدھ کی سروس ہوتی ہے، کہیں جمعے کی سروس ہوتی ہے، خدا اپنے خدا کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری نبوتیں، نبوت کرنا بہت سارا آسان ہے۔ 2 طرح سے نبوت کی جاتی ہے۔ اب یہ سیکھنے کی بات، اب یہ سیکھیں، اب سونا بند کریں میٹنگ میں، اب سیکھیں۔ 2 طرح سے آپ نبوت کر سکتے ہیں۔ ایک نبوت تو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے بائبل 2 طرح سے لکھی گئی ہے، جو کہ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہے شاید ان کو پتا ہوگا ان کو، یہ بائبل 2 طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو بائبل آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کو آپ فر 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 ایسے اس کو سیدھا سیدھا پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لوگوس۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بائبل کو پڑھنا سیدھا سیدھا اور اس کو سمجھنا، جو کچھ لکھا ہے اس کو جاننا اور اس پر ایمان لے کر آنا، یہ کہتے ہیں جی لوگوس کلام ہے، لوگوس بائبل ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسا کلام ہوتا ہے جو آسمان سے ڈائریکٹلی خادم کے اوپر اترتا ہے، اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر اترتا ہے، اس کلام کو کہا جاتا ہے ریما کلام۔ جی کیا کہتے ہیں؟ ریما، مکاشفہ۔ آمین۔ جی کیا کہتے ہیں؟ ان کے لگائیں 3-4 تھپڑ جو ان کو الگ الگ بٹھائے سب کو۔
जी ऐसे कलाम को क्या कहते हैं? रहमा, वर्ड ऑफ गॉड, ऐसा कलाम जो कि आसमान से उतरा। जी दो तरह के कलाम मैंने आपको बताया। पहला ऐसा कलाम जो कि लोगोस होता है, जो कि आप पढ़ते हैं। दूसरा ऐसा कलाम जो आप पढ़ते नहीं बल्कि आसमान से आपके ऊपर जारी होता है, उसको कहते हैं रहमा। अब ये सेम प्रोसेस आपका प्रोफेटिकली होता है। ऐसी नबूवत है जो आप करते हैं। पहली तो वो नबूवत जो कि आप लोगोस करते हैं, सीधी आप बोलते हैं खुदा आपको बरकत देगा, आमीन, खुदा आपको बरकत देगा। ये मैंने लोगोस बोली है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा मैं किसी को बीच में उसे उठाता हूँ और कहता हूँ खुदा आपके बारे में ये फरमाता है। ये होती है रहमा प्रोफेटिक। इसमें खुदा अपनी नबूवत अपने नबियों के ऊपर डालता है और वो नबी, वो खादम, वो नबूवत करते हैं उसके ऊपर और वो नबूवत पूरी हो जाती है। लेकिन जो लोगोस नबूवत होती है वो भी पूरी होती है, लेकिन वो अपने टाइम पर पूरी होती है। लेकिन जो रहमा नबूवत होती है, जो डायरेक्टली खुदा से खादम के ऊपर उतरती है, वो उसी वक्त पूरी होना शुरू हो जाती है। दो तरह की नबूवत है। आप अभी रहमा नबूवत नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली खुदा से प्रोफेटिक नहीं ले सकते। कुछ ले भी सकते होंगे, मैं नहीं जानता। सबके लिए खुदा है, सबके लिए खुदा का रूह है, आमीन। कोई भी नबूवत कर सकता है। लेकिन आप लोगोस नबूवत आप सब कर सकते हैं। आप एक दूसरे से कहें खुदा को बरकत दे, कहें खुदा को बरकत देगा, खुदा आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। देखें एक दिन आएगा आप बाबरकत हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में खुदा काम करने लगेगा, आमीन। ये क्या है? ये आपने नबूवत कर दी किसी पर, अब खुदा इस नबूवत को पूरा करेगा, आमीन। ये आपने किसी पर नबूवत कर दी। लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे कि नबूवत क्या है, तो आप कहें नबूवत खुदा का कलाम है जो वक्तों से पेशतर नबियों पर जाहिर हुआ और वो नबूवत उनके मुंह से निकली और खुदा ने आसमान खोलकर उस नबूवत को पूरा किया। जब हम मकाशवी किताब पढ़ते हैं उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत में क्या लिखा? उसमें लिखा, देखो ये नबूवत की किताब पढ़ने वाला, ये नबूवत की किताब, इसको इस पर मुबारक है। ये नबूवत की किताब, आप जहां कहीं देखेंगे आपको नबूवत नजर आने लगेगी। जब मैंने सरमन शुरू किया, आप कोई भी हवाला देखें उसमें नबूवत हुई है। यीशु मसीह अक्सर में जब प्रोफेटिक बोलते थे, यीशु मसीह का कपड़ा, यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह बोले ना बोले, यीशु मसीह के कपड़े भी नबूवती काम करते थे। 12 साल से एक औरत को शिफा की जरूरत थी। उसने जैसे उस पल्ला छुआ, उसमें से एक नबूवती कुव्वत निकली कि तू आज ठीक हो जाएगी। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना शागिर्दों ने कुछ बोला, ना यीशु मसीह ने कुछ बोला, ना वहां पर जो लोगों की भीड़ थी उन्होंने ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, ना उन्होंने कुछ बोला। लेकिन यीशु मसीह के जो कपड़ों में से कुव्वत निकली ना, उस कुव्वत ने चुपचाप उस औरत को बताया कि तू आज ठीक हो जाएगी। और बाइबल कहती है वो औरत उसी दम ठीक होने लगी। ऐसी चुपचाप कुव्वत जो यीशु मसीह की है, यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों में एंटर होने लगे और वो कुव्वत आपकी जिंदगियों में ऐसी नबूवत को डाले जो नबूवत कभी हुई नहीं थी आज तक। जो आज तक कमजोरी में थे, जो आज तक लाचारी में थे, वो कमजोरी वाली और वो कुव्वत वाली यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु के आसमान खुलता है और उसमें से वो नबूवतें जारी होती हैं और आपके जिस्मों के ऊपर जारी होती हैं, आपकी हड्डियों में जारी होती हैं, आपकी जिंदगियों में जारी होती हैं। और जिस तरह से वो 12 साल की औरत शिफा पा गई, यीशु के नाम से आप मुकम्मल तौर से शिफा पा जाए, रिहाई पा जाए, आजाद हो जाए और आपकी जिंदगी में नबूवती प्रोफेट की अनॉइंटिंग ठहर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मांगते हैं। और जैसे उस औरत के अंदर वो अनॉइंटिंग गई, उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे ऐसा। फिर यीशु मसीह को पता चलता है कि मुझे किसी ने छुआ है और मेरे अंदर से अनॉइंटिंग निकली है, मेरे अंदर से मस्सा बाहर निकला है। तो वो औरत फिर सामने आई। यीशु मसीह की नबूवती अनॉइंटिंग इस तरह से काम करती है। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ें तो उसका 12 बाब पढ़ें तो उसमें खुदा बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ बात करता है इब्राहिम के साथ। आए इसको तिलावत करते हैं और देखते हैं खुदावंद ने क्या कहा। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच में से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
اب خدا نے جب کہا کہ میں کچھ تجھے دکھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نبوتی بات ہو گئی. سب کہیں ہاللویا. اگر خداوند نے کچھ کہا کہ دیکھ میں تجھے کچھ دکھاؤں گا, میں تجھے کچھ بتاؤں گا, تو یہ ایکچوئل میں کیا ہوا؟ یہ ایک نبوتی سٹیٹمنٹ ہو گئی. آگے میں دوسری آیت کو پڑھنا چاہوں گا. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, یہ نبوت ہے, اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث سے برکت ہو. اب میں جو پڑھنے لگا ہوں اس کو غور سے سنیں. تیسری آیت, جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا. یہ پروفیٹک ہے اور یہ آپ کی زندگی میں بولتا ہوں. اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یہ جو نبوت ایک سٹیٹمنٹ تھا, یہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے کھولا, اور ابراہیم کو خدا نے کہا کہ دیکھ جو کوئی بھی تجھے اچھا کہے گا میں اسے برکت دوں گا, لیکن جو کوئی تجھے اچھا نہیں کہے گا, جو تیرے سے خندق رکھے گا, جو تجھ سے دور رہنا چاہے گا, تو میں آٹومیٹکلی اس سے دور رہوں گا. آج آپ دیکھیں لوگ خدا سے کیوں دور ہو رہے ہیں. خدا 90% میں نے آپ کو بتایا, خدا نے مجھے یہاں پر بتایا کہ تیرے لوگ 90% بابرکت ہو چکے ہیں چرچ کے. میں نے کہا خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے 90% جو چرچ کے لوگ ہیں تو نے ان کو برکت دینا شروع کر دی ہے اور ان کے کھتے بھر گئے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے سجدے میں کوئی بھی نہیں آ جایا گرنے کے لیے. ایسا نہ ہو خدا آپ کے پاس آئے, اور بتا دیجیے گا ان لوگوں کو اگر وہ آپ کو سن رہے ہیں, جہاں مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں, میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن خدا نے مجھ سے, ایسا نہ ہو کہ خدا آئے چراغ کو گل کرے, چراغ کو بند کرے, اور چراغ کی جو جگہ ہے تبدیل کر کے کسی اور کو چراغ دان دے دیا جائے, پھر تجھے 6 مہینے, سال, 6 سال, 5 سال, 10 سال منہ دیکھتے رہنا. اور اس سے کہتا ہے خدا جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اب یہ دو طرح کا عہد خدا نے, آپ کو سمجھنا پڑے گا. آج کا کلام اس میں نبوت بھی ہے, برکت بھی ہے, لیکن ٹیچنگ بھی ہے, لیکن تھوڑا سمجھنا پڑے گا آپ کو. اب یہ دو عہد جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھے, ایک تو خدا نے کہا کہ میں برکت دوں گا, اور دوسرا کہا کہ میں لعنت کروں گا لوگوں پر. جی کتنے طرح کی نبوتیں ہو گئیں؟ کتنی طرح کی ہو گئیں؟ 2 طرح کی. ایک تو خدا نے کہا دیکھ میں کیا کروں گا جی, میں برکت دوں گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا جی, میں ان لوگوں کو لعنت دوں گا. جی 2 طرح کی. کہتا ہے جن پر تو لعنت کرتے گا نا میں انہوں لعنت دینی ہے. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا ہماری لعنتوں کو توڑتا ہے. شکر کرتے ہیں خدا ہمارے منہ سے کسی کے لیے لعنت نہیں نکلواتا. آمین. ہم شکر کرتے ہیں, ہم بابرکت ہیں خدا کی حضوری میں. اور دوسرا خدا نے کہا کہ دیکھ جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا. اب یہ 2 طرح کے سٹیٹمنٹ خدا نے کہا ہے. جب ہم گنتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں 22 نمبر باب, اور اس کی شادی ہے, دعا, اوکے کوئی بات نہیں, آپ میری بات سنیں. سمجھیں گنتی کی کتاب اس کا 22 نمبر باب اور اس کی 9 نمبر آیت سے میں خداوند کے کلام سے تلاوت کروں گا, بلکہ آپ تلاوت کریں 9 نمبر آیت سے. یہ ایک سٹوری ہے ایک خدا کے نبی کی. خدا کے نبی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور خدا کے نبی کو آ کر کہتے ہیں جس کا نام بلام ہے. بلام اور بلام کی گدی. جی یاد آیا آپ کو؟ بلام اور بلام کی گدی. اب جب بلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ اس سے آ کر کہتے ہیں کہ بلام ایسا کر, تو نبی ہے, خدا تیری بات کو سنتا ہے. وہاں پر بہت سارے اسرائیلی لوگ ہیں, اسرائیلی قبیلے وہاں پر ہیں, ان کے اوپر جا کر تو لعنت بول, کیونکہ جو تو بولتا ہے خدا ویسا ہی کرتا ہے. تو بلام نے کہا میں لعنت نہیں بولوں گا, خدا نے مجھے نہیں کہا لعنت بولنے کے لیے. اور وہ لوگ جن کو تم لعنت دلوانا چاہ رہے ہو وہ لوگ بابرکت لوگ ہیں. آئیں دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 22 نمبر باب اور 9 نمبر آیت میں. جی بیٹا پلیز پڑھیے کیا ہوا خدا کے کلام میں. اور خدا نے بلہام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہے؟ خدا نے کہا یہ تیرے ہاں کون سے آدمی آئے ہیں, یہ ان نون پرسن ہیں, ان کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں. جی آگے کیا لکھا؟ بلہام نے خدا سے کہا, کیا کہتا ہے خدا سے؟ کہ مواب کے بادشاہ بلق بن
सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है क्या कि कहला भेजा है? जो कौम मिस्र से निकल कर आई जो है, कौम मिस्र से निकल के आई है, मीन्स के बनी कौम इस्राइल, उससे जमीन की सतह छुप गई है। उससे जमीन की सतह छुप गई है। आपकी भी इतनी बरकतें हो कि आपके घर में रखने की जगह ना हो, आपका घर छुप जाए, आपका अकाउंट छुप जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप इतने बाबरकत हो जाएंगे। आगे क्या लिखा? सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर। कहता है वो शख्स उस नबी के पास आकर कहता है कि तू अब मेरी खातिर आ, और ये जो बाबरकत लोग हैं इनके ऊपर आकर लानत कर दे। कहता है ये जो लोग बैठे में हैं जो कि बाबरकत हैं, इनके ऊपर आ और आकर लानत बोल और ये लानती हो जाए। आगे क्या हुआ जी? फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं। फिर मुमकिन है कि मैं उनके ऊपर गालिब आ सकूं। लेकिन सच तो ये है, इब्लीस कल भी हारा हुआ था, आज भी हारा हुआ है, आने वाले वक्तों में हारा रहेगा और आप मैं जीत जाएंगे। फतह नहीं बल्कि फतह से बढ़ के गलबा पाएंगे, गलबा पा जाएंगे, गलबा पा जाएंगे। आगे क्या लिखा जी? और उनको निकाल दूं। उनको निकाल दूं। आगे खुदा ने बलहाम से कहा। क्या कहा खुदा ने बलाम से? तू इनके साथ मत जाना। तू इनके साथ मत जाना। तू उन लोगों पर लानत ना तू करना। उन लोगों पर लानत भी ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। इसलिए कि द होली फायर चर्च के लोग मुबारक हैं, इनके खत्ते मुबारक हैं। और वो लानती जो आप पर और मुझ पर लानत करना चाहता है, खुदा के हाथ को देखेगा, खुदा के जलाल को देखेगा। और आज लानतें टूटती हैं यीशु के नाम में, आज लानतें टूटती हैं यीशु के नाम में। हर वो लानत जो जल्दी पूछती हो और आपके ऊपर है, आपके घरानों के ऊपर है, यीशु के नाम से आज वो लानत टूटती है। आमीन। बहुत ही ठंड लानतें टूटती हैं यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। 12वीं आयत दोबारा पढ़ें। खुदा ने बलाम से क्या कहा? तू इनके साथ मत जाना। तो इन लोगों के साथ तू मत जाना। कौन से वो लोग? आज देखिए आपकी जिंदगी में भी लोग हैं जो आपको चर्च नहीं आने देते। लोग नहीं है तो आपकी अपनी सोचें हैं जो आपको चर्च नहीं आने देती, आपको खुदा के सामने सजदा नहीं करने देती, आपको यीशु के पास नहीं आने देती, आपको ये समझने नहीं देती कि देख दुनिया की कब्रों में से एक कब्र खाली है। आपको ये समझने का मौका नहीं देती कि अगर तू इस चर्च का हिस्सा बनता है, अगर तू यीशु मसीह के कलाम को सुनता है, तो तेरी जिंदगी खुदा का बेटा यीशु चेंज कर देगा, तुझे बाबरकत कर देगा, तेरी नस्लों में से लानतों को खत्म कर देगा। आमीन। खुदा ने बलाम से कहा कि तू उनके साथ मत जाना। खुदा ने बलाम को मना किया। ये तार हिल रही है, ये बच्चे हिला रहे हैं, इनको साइड पर करने। और इस तार को किस तरह से सेट करके लगाएं जरा प्लीज। खुदा ने बलाम से कहा तो उनके साथ मत जाना, तो उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि मैं वो लोग मुबारक हैं, मैंने उन लोगों को बरकत दी है। आज लोग इस चीज को समझते नहीं कि खुदा ने अचल में हमें बरकत दी है। लोग अपनी घरों की ख्वाहिशों में ना फंस चुके हैं मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, पर नबूवत ही बता रहा हूँ आपको, जिनको अपने घर की ख्वाहिश है कि हमारा घर अच्छा बन जाए। हाथ मैं नहीं उठवाऊंगा, मुझे पता आप लोग काफी सारे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर के अलाइंसेस चाहिए, जैसे कि एक्सेसरीज चाहिए, जैसे कि घर की बहुत सारी ऐसी जरूरतें, एसी, फ्रिज, कूलर, ये चीजें बहुत आप चीजों की तमन्ना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुदा की तमन्ना की है? क्या कभी आपने यीशु के कलाम की तमन्ना की है? क्या जितना आप अपने घर को सोच रहे हैं, क्या आपने खुदा को उतना सोचा है जितना आप अपने मुस्तकबिल को सोच रहे हैं? क्या आपने खुदा को उतना सोचा है? अरे आप अपने मुस्तकबिल को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने घर की एक्सेसरीज को छोड़ के अगर यीशु के पीछे चलते तो ये चीजें तेरे कदमों में होती। क्योंकि मत्ती की चीज 6 बाब के कहता है कि देख आसमान की बादशाह को ढूंढ, आसमान के बादशाह को ढूंढ, तो ये जमीनी चीजें तुझे पहुंच कर मिलेंगी, तेरे कदमों के नीचे होंगी। हालेलुया, हालेलुया।
खुदा के नाम को इज्जत जलाल देते हैं। तो जब पैदाइश में खुदा ने 2 तरह की नबूवतों का वादा किया इब्राहिम के साथ कि देख अगर तुझे कोई अच्छा कहेगा मैं उससे बरकत दूंगा, लेकिन अगर तुझे कोई बुरा कहेगा मैं उस पर लानत करूंगा। अब ये जो बिलाम प्रॉफिट है ये भी इब्राहिम से निकला होगा, इसका भी ईमान इब्राहिम पे होगा जी, सबका ईमान इब्राहिम पर। हालेलुया हालेलुया। आप अगर इतने लूज होकर बैठेंगे, लेजी होकर बैठेंगे, मैं सरमन कैसे सुनाऊंगा बेटा? प्लीज थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठे, लूज नहीं होते एंड ऐसे नहीं हो, थोड़ा एक्टिव होकर। मैं थोड़ा ना चौका थक गया, मैं तो बता रहा हूं आपसे ज्यादा थका हूं, लेकिन मैंने ये बरकत का कलाम एक्चुअल में आपके लिए आपको देना है, आपको बरकत देनी है। आमीन आमीन। अब ये जिस तरह के 2 अहद उसने खुदा ने उससे कहा जी ऐसा हो, उसके बाद ये बिलाम गिनती की किताब उसका 22 नंबर बाब उसकी 9 से 12 आयत में किसी पर लानत करना चाहता है, लेकिन खुदा ने कहा देख मैं बरकत तो दे सकता हूं लोगों को, लेकिन मैं लानती नहीं ठहराऊंगा। लानत उसके ऊपर नहीं आएगी उन लोगों के ऊपर, नबूवती कलाम आपको लेकर जा रहा हूं उसी तौर पर। अब सुने मेरी बात, आपकी जिंदगी के ऊपर जो जनरेशनल लानतें होती हैं वो खुदा का कलाम तोड़ता है उन लानतों को। सब कहें आमीन आमीन। और जब वो लानतें टूट जाती हैं तो इब्लीस की जुर्रत नहीं उस लानत को फिर से बरकरार कर सके। आमीन। अगर मिसाल के तौर कोई बेरोजगार है, काम नहीं है किसी का, खुदा उसकी जिंदगी में काम करेगा, और जब खुदा काम करेगा नबूवती तौर पर, फिर बेरोजगारी कभी भी नहीं आएगी, वो लानत टूट जाएगी। आमीन। आपकी जिंदगी से खुदा इस लानत को तोड़ता है। जल्दी से आना मोनिका, आप जल्दी से जान, जल्दी आना। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आए हम सब दुआ करते हैं, आए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। वो खुदा जो वक्तों से मौजूद है, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा, आए वो खुदा जो वक्तों से मौजूद है, वो खुदा जो किसी भी तरह से हमें बरकत देता है, वो खुदा जो किसी भी तरह से हमें नई जिंदगी देता है। आए हम दुआ करना शुरू करते हैं और उस खुदा को पुकारते हैं और शुक्र करते हैं उस खुदा का जिसकी लानत कभी भी हमारी जिंदगी में काम नहीं की, जिसने लानतें हमें लोगों ने देना चाहिए लेकिन खुदा ने उन लानतों को तोड़े रखा। खुदा ने हमें बाबरकत ही किया, बाबरकत ही किया और हमेशा बाबरकत करता है, हमेशा हमारी जिंदगियों में काम करता है। खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इसकी जिंदगी में खुदा जिस तरह से तू फरमाता है उसी तरह से खुदा मैं इसको फरमाता हूँ। इसकी जिंदगी में खुदा बरकत आती है, इसके शौहर की जिंदगी में बरकत आती है। यीशु मसीह नासरी के नाम से बहुत सारे ऐसे काम जो तेरे शौहर की जिंदगी में स्टक थे, खत्म थे, ब्लॉक थे, आज खुदा कहता है मैं उन कामों को आज़ाद करता हूँ और आज से आप लोग टेंशन फ्री यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज से तेरा शौहर टेंशन फ्री होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। और हर वो दरवाज़ा जो उसकी ज़िंदगी में बंद था, चाहे वो यहाँ नहीं है, लेकिन नबूवत का कलाम आज उस तक ज़रूर पहुँचेगा और बहुत जल्दी आप फ़ोन पर एक गुड न्यूज़ सुनेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद तेरी कुदरत तेरा जलाल इसकी ज़िंदगी में काम करे और ये नबूवत इसकी ज़िंदगी में डालता हूँ और ये खुल जाएगी और खुदावंद इसको कोई दोबारा बंद ना करने पाएगा और ये बाबरकत हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये दुआ मांगते हैं और पाते हैं, मांगते हैं और पा लेते हैं। और खुदा ने उन प्रॉफिट को, उस नबी को लानत नहीं करने दी और खुदा ने कहा देखिए जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ये सब बाबरकत हैं क्योंकि मैंने इनको बरकत दी है। तो बिलाम तू इनको कैसे मतलब इनको तू लानती ठहरा सकता है? ये तो बाबरकत लोग हैं, इनकी तो जिंदगी में बरकत है, इनकी तो जिंदगी में तेरे काम है, मेरे काम है। आमीन। लेकिन जब आप नबूवत बोलते हैं, नबूवत बंधनों को ऐसा तोड़ती है जो आज से पहले कभी भी नहीं टूटे। ये फर्क नहीं पड़ता फिर आप नबूवत खुद से बोली भी कर रहे हैं या तो फिर आसमान के खुदा की। आमीन। अब देखें मकाशी की किताब 19 बाब 10 आयत में लिखा कि यीशु की गवाही, सुने मेरी बात को बड़े गौर से, यीशु की गवाही क्या है? आप में से कौन बताएगा? बताएं यीशु की गवाही क्या है? यीशु की गवाही क्या है? बताएं क्या है यीशु की गवाही? नबूवत की रूह, ये तो पूरी आयत है। यीशु की गवाही क्या है मुझे बताएं, आप में से कोई भी बता दे। कि उसकी कब्र खाली है और वो जिंदा खुदा है, यही तो यीशु की गवाही है। आपको नहीं पता आपका यीशु जिंदा है? वो दसो मुंह बोलो की हो गया जे, आपका यीशु जिंदा नहीं है, उसकी कब्र खाली है ना। अब मेरी बात को सुने बड़े गौर से। अब यीशु की जो गवाही है, यीशु की जो गवाही है
اب یسوع کی گواہی کے گواہ کون ہیں؟ یسوع کے گواہ کون ہے؟ دسو کون ہے یسوع کے گواہ؟ کون ہے یسوع کا گواہ؟ اور بندہ انہیں بیبیاں جو کوئی بھی نہیں گا، اور خدا دا واسطہ ہے آپ یسوع کے گواہ نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ یسوع کی قبر خالی ہے، بتائیں گے کہ نہیں؟ بولو جی، بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے آپ؟ تو لکھا یسوع کی گواہی۔ تو اگر میں اس کو یوں پڑھوں کہ یسوع کے جو گواہ ہیں، یسوع کا گواہ کون ہے؟ یسوع کے آپ گواہ ہیں نا، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، وہ کوئی آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ دیکھو یسوع ہمارا زندہ خدا ہے، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہمارے خدا کی قبر خالی ہے، بتاتے کہ نہیں؟ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ یسوع کے گواہ بنتے ہیں۔ اب آگے کیا لکھا؟ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اس کا مطلب جو یسوع کے گواہ ہیں ان میں نبوت کی روح ہے۔ آمین آمین۔ تو آپ میں آٹومیٹکلی ایک پروفیٹکلی روح ہے، لیکن آپ نبوت کسی پر غلط نہ کریں۔ تو اگر آپ کو کسی نے کچھ دیا نہیں تو آپ یہ نہیں بول سکتے میں تجھ پر نبوت کرتا ہوں، میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں۔ آپ کیسے لعنت کر سکتے؟ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے میں درد نبوت کر دیتے ہوں تو نہیں بچنا ہوں تو ویکھی او بچ بچا رہا ہوں جی پڑھے دیکھ جا۔ میں کہا ویکھیا کہ جس نے نبوت، میں تو پہلے ہی آکھیا سی کہ تیرے نہ انج ہونے، یہ نبوت نہیں ہوتی، یہ نبوت نہیں ہوتی، یہ سکس سینس ہوتا ہے جو کہ آپ سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنا دماغ اپنی سوچ سیٹ کرتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں کچھ ویسا اس سے ملا جلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبوت نہیں ہوتی، یہ نبوت نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے۔ نبوت وہ ہے جو آپ کسی کے لیے برکت بولیں تو وہ نبوت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ انسان لوگوں کے لیے لعنت مانگ رہا تھا، خدا نے کہا ہے نا آپ سے لعنت نہ مانگا بابرکت نے، لیکن جب آپ کسی کے لیے غلط نبوت بولتے ہیں، ایکچوئل میں جو اتھنٹک مین آف گاڈ ہوگا، خدا کا نبی ہوگا، وہ جب کسی کے لیے کرے گا وہ صحیح ہوگی غلط ہوگی، رحمہ میں خدا اس کے اوپر نبوت کو ڈال دے گا، اور جب وہ کسی کے اوپر نبوت کرے گا خدا اس نبوت کو پورے کرے گا، چاہے وہ بری ہو چاہے وہ اچھی ہو۔ آمین۔ ایلیا نے کہا، جب ہم پہلا سلاطین پڑھتے ہیں اس میں 17 باب میں ایلیا نے کہا زندہ وہ خدا ہے جس کی حضوری میں کھڑا ہوں، اور دیکھو ان برسوں میں نہ تو اوس پڑے گا نہ ہی می برسے گا۔ ایسا کہا ایلیا نے، ایسا کہا۔ یہ اس نے ایک طرح کی لعنت مانگی، لیکن یہ اس نے لعنتی لوگوں کے لیے لعنت مانگی، برکت لوگوں کے لیے اس نے لعنت نہیں مانگی۔ آمین ہاللویا۔ اخیب وہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے ہاں دیکھ لا کہ 3.5 برس ہو گئے بارش کا ایک قطرہ، بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری، لیکن جس دن ایلیا نے کہا آج بارش ہوگی تو پھر بارش ہونے لگ گئی۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی بارش ہو، آپ کے خطوں میں برکتوں کی بارش ہو، آپ کے گھرانوں میں بارش ہو، بیماریاں جاتی رہے، بیماریوں کی لاتیں نیچے گر جائے، بیماری کی لاتیں آج نیچے گرا دو میں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ آمین۔ تو جب آپ کسی کے لیے کچھ برا بولیں تو وہ نبوت نہیں ہوگی، وہ آپ کی اپنی سوچ ہوگی جو کہ یہ بتائے گی کہ آپ کس حد تک گرے ہوئے انسان ہیں۔ لیکن جگہ آپ کسی کے لیے اچھا بول رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ شخص بہت اچھا ہے، تجھے خدا برکت دے گا، تو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اسرائیل کے خدا کو مانتے ہیں، یہ پتا چلتا ہے آپ کا خدا بابرکت ہے، اس لیے اس کے درختوں میں سے جو پھل ہے اس میں سے مٹھاس نکل رہی ہے، پھر لوگ جاننے لگتے ہیں کہ اس کے منہ سے برکت کے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ ضرور ہی کسی پروفیٹکلی اور کسی بابرکت چرچ سے اور کسی بابرکت خادم سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاللویا۔ آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا ریپریزنٹ کرواتا ہے آپ کس چرچ میں ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں میں اٹھ کے بیٹھنا، شرارتیں کرنا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے خادم کے کیا پھل ہیں۔ اس لیے دھیان رکھا کریں، نبوت میں رہا کریں، دعا میں رہا کریں، روزوں میں رہا کریں، تاکہ خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کر سکے۔ ہاللویا۔ یسوع کے گواہ نبوت کی روح سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یسوع کے گواہ ہیں تو نبوت تو آپ میں ہوگی۔ اور دیکھیں، اگر آپ کسی پروفیٹک چرچ سے ہیں، نبوتی چرچ سے، تو آپ کا خادم یا جن کا خادم مجھے آن لائن بھی سن رہے ہیں، وہ سکھاتا ہے جیسے میں سکھا رہا ہوں کہ کسی کو برا نہیں بولنا،
किसी ने नहीं कहना तेरी लत टूट जाएगी, तेरी अख फाड़ जाएगी। ये नबूवत नहीं होती, ये लानत होती है जो आप किसी को दे रहे होते हैं। ये तो लानत की नबूवत हो गई। और खुदा तो मना कर रहा है कि वो लोग बाबरकत हैं। तो इसी तरह से जैसे आप बाबरकत हैं, इसी तरह से खुदा ने सब लोगों को बाबरकत बनाया है। आमीन। अगर हमारे अंदर एहसास ना हो किसी के लिए और हम किसी के लिए नबूवत करें, वो नबूवत पूरी नहीं होगी। कभी भी याद रखें मेरी बात को। आप किसी के लिए उतो तो आख दो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए एहसास रखते हैं, आपके दिल में किसी के लिए एहसास है और आपके दिल की एहसास की उस इमोशन से टच करके आप लोगों से नबूवत बोल रहे हैं, तो वो खुदा में पूरी हो जाएगी, वो रहमा बन जाएगी और आसमानी खुदा आपको बहुत कुछ दिखाने लग जाएगा। नबूवतें मौकूफ हो जाती हैं, लेकिन मोहब्बत इन सबसे साबिर है, सब है। इसलिए हमारी मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए खुदा से। हमारी मोहब्बत चर्च से लोग मोहब्बत क्यों नहीं रखते? टुर जाएंगे जी, देखेंगे। लोग क्रिसमस को नहीं चर्च में आते, लोग ईद की इबादत को भी चर्च में नहीं आते। लोगों को घरों पे आप जाएं विजिट करने, उन्होंने तरले करो। मैं तो तरले, मैंने कहा खुदा मैंने नहीं तरले करने, साफ और सीधी बात है। विजिट पर जब तू मुझे बोलेगा मैं चलांगा, मैं तरले मैं नहीं किसी से करने। आ जाओ प्लीज आ जाओ, तुम्हारे पैर फड़िए, तुम्हारे पैर तो ये, मेरे से ये काम नहीं होता। ना मैं किसी को चर्च के लिए तरले करता हूँ और ना मुझे दाई यकी मांगने के लिए तरले की। मैं कह खुदा मैं दाई यकी भी मांगू तो मुझे तरले ना करने पड़े। लोगों के दिलों को तू बदल, लोगों के दिलों में तू काम कर, लोग खुद ही ये काम करें। मैं कहा तेरा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड होने के लिए मुझे पैसे के लिए भीख ना मांगना पड़े, मुझे चर्च भरने के लिए भीख ना मांगना पड़े। और खुदा नबूवती तौर पर आपसे कहता है, खुदा इस चर्च में काम ऐसा करेगा, हमें विजिट नहीं करना पड़ेगा, लोग दूसरे लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि खुदा इस चर्च में ऐसे काम करेगा और लानते खुदा तोड़ेगा लोगों की, और लोग बरकत होंगे इसी चर्च में से। यीशु के नाम में कहें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन। खुदा कभी भी बुरी नबूवत नहीं करवाता, खुदा हमेशा अच्छी नबूवत करवाता है। जब आप अपने दिमाग में बुरा सोचते हैं ना, हाय इंज हो जाए, हाय उंज हो जाए, ओहो ओ ते इंज दा है, ओहो ओ ते इंज दी है, फिर खुदा प्रोफेटिकली आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर गंदगी है, अगर आपके अंदर बुरी बातें हैं, अगर आपके अंदर बख्तोइयां हैं, गालियां हैं, दूसरों के लिए जेलसी है, हसद है, तो नबूवत ही प्रोफेटिकली, ठंडा पानी पिलाएं मुझे, प्रोफेटिकली कभी भी आपके साथ काम नहीं। लेकिन अगर एहसास है ना आपके दिल में, खुदा आपकी नबूवतों को पूरा करेगा। ये जो नबी है जिसका नाम बिलाम प्रॉफिट है, ये आगे जाके फिर भी चला गया ते जाके उन्होंने कहंदा बंदियां नूं रुको, मैं जरा पहाड़ ते जावां दुआ करके आवां, तो उत्थे जाके इन्हां बंदियां ते मैं लानत कर दांगा। खुदा ने बंदे ने कहा ठीक। वो जिवें अगे गया पहाड़ ते दुआ हाथ चुकदा है ते उन्हां हाथ उठांदा है ते उन्हां लानत करदा है, लानत के अल्फाज बोलने लगता है। उसी वक्त उसकी जुबान को खुदा पकड़ लेता है और लानत की जगह उसके मुंह से बरकत निकलने लगती है। हर वो शख्स जो आपको लानती देखना चाहता है, आज से आपको बाबरकत ही देखेगा, बाबरकत ही देखेगा, बाबरकत ही देखेगा। हालेलुया। उसने एक बार नबूवत की, उसके मुंह से बरकत के अल्फाज निकले, फिर हार नहीं मानिया बंदा। फिर वो दूसरी बार नबूवत करता बिलाम, कहता हुण मैं नबूवत करना ते इन्हां लोकां ते लानत दांगा। ओदी जुबान फिर खुदा फाड़ लेंदा है और फिर बरकत उसके मुंह से निकलने लगती है। फिर तीसरी बार वो जाता है पहाड़ पर, वो तीसरी बार भी उस लोगों के ऊपर लानत करना चाहता है, फिर खुदा फाड़ लेंदा जुबान, फिर उसके मुंह से बरकत निकलती है। फिर वो कहता है नबी उन्हां बंदे ने, हुण मैं आखिरी बार चला जे, चौथी बार, हुण मैं आखिरी बार चला जे। वो बंदे कहंदे ने यार बिलाम तू की करना है, असी तेरे वास्ते इन्नी कुर्बानियां करने, खुदा नूं थल्ले लाने आ ते तू उन्हों लानत देने की जगह बरकत दे देंदा है। वो कहता अच्छा हुण मैं चौथी बार, फिर चौथी बार वो फिर पहाड़ पर जाता है, कुर्बानियां होती हैं और दुश्मन कहता है नबी को हाथ बढ़ा दे उन लोगों की तरफ और उनके ऊपर लानत कर दे। वो जैसे हाथ बढ़ाता है, खुदा कहता है बिलाम मैंने इन लोगों को लानत के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए चुना है। ये लानती नहीं बल्कि बाबरकत होंगे, और आज आपकी जिंदगी लानती नहीं बल्कि बाबरकत होगी। यीशु के नाम में नबूवत करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन।
अच्छी नबूवतें अच्छा फल लेकर आती हैं। आमीन। बुरी नबूवतें हैं बुरा फल लेकर आती हैं। अगर जादूगर क्या करता है, जादू कैसे होता है, वो कोई फोटो छोटो सामने रख के ना तू मैं निकालता है, यह हो जाए नो, अपने खुदा का नाम लेके ऐ हो जाए नो, ओ हो जाए, ओ हो जाए। जादूगरों के खुदा उसकी लानत की तैयारी में होते हैं, और हमारा खुदा हमें पहले बरकत पर बरकत दे चुका होता है, और वो बाढ़ लग चुकी होती है जो कोई शैतान तोड़ ना सकेगा। वो कुदरत छा चुकी होती है जो इब्लीस को घबरा देती है, इब्लीस को परेशान करती है। अरे वो अनॉइंटिंग हड्डियों में जाना शुरू हो चुकी होती है, जिस अनॉइंटिंग से बीमार शिफा पा जाते हैं, जिस अनॉइंटिंग से खुदा की कुदरत जाहिर होने लगती है। आमीन। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। वो जो भला खुदा है, वो जो रहम करने में शफकत उसकी जो अबदी है, जो समझ से बाहर है, जो आप समझ नहीं सकते, जिस शफकत के बारे में मैं बयान भी करूं तो आप उस शफकत के बारे में जान भी ना सकेंगे। लेकिन खुदा की शफकत हमेशा अपने बंदों के साथ है। तो खुदा ने पहले याद किया अब्राहम के साथ कि जी देख लानत भी होगी बरकत भी होगी। आगे बंदे आ गए, चलो भाई लानत दो। खुदा ने कहा ए ओ लोग नहीं जिन्होंने तू लभन दे ओ कितने होर तेनू लभीणगे, ए बाबरकत लोग ने, लानत इन्हां दे उत्ते काम नहीं करनी। लानत के लिए लानती। ये बच्चों को चुप कराएं, आपके सामने बच्चे बैठे हुए और आपका ध्यान पता नहीं आप लोगों का कहां पर होता है, सो रहे होते हैं आप लोग इबादत में। खुदा का वास्ता है आपको, खुदा कहता है लानत के लिए लानती लोगों को ढूंढो, बरकत के लिए बरकत लोगों को ढूंढो ताकि उनसे बरकत ले सको। और एक दिन आएगा इतनी बरकत आपके अंदर आ जाएगी, आप में से लोग बरकत लेना शुरू करेंगे, आप में से लोग बरकत को लेना शुरू करेंगे। आपके प्याले खुदा लबरेज करता है, यीशु के नाम में उसका तेल हमारे सरों पर आता है और हमारे प्याले लबरेज होते हैं, हमारे प्याले लबरेज होते हैं, हमारे प्याले लबरेज होते हैं। आमीन। और फिर खुदा ने अच्छी नबूवत के लिए, बाबरकत नबूवत के लिए किसी को रूह में उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिजकील नबी की किताब उसका 37 नंबर बाब और उसकी पहली नंबर आयत में, और अब सरमन शुरू होता है। सुनिए बड़े गौर से खुदा का कलाम क्या कहता है, और आए बड़े ध्यान से सुनते हैं खुदा के कलाम को। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और नबूवत करता हूं बरकत की, नबूवत आपकी जिंदगी में कि खुदा आपको बरकत करे और लानत आपके ऊपर काम ना कर सके। इन जीसस नेम। क्या लिखा बेटा? खुदावन का हाथ मुझ पर था, खुदावन का हाथ मुझ पर था, देखे ऐसे दिन खुदावन का हाथ मुझ पर था। आपकी आवाज सड़ी है, खुदावन का हाथ मुझ पर था। अगर खुदावन का हाथ तो है ते वाजा एनिया थल्ले होन ते मजेदारी नहीं। खुदावन का हाथ मुझ पर था, खुदावन का हाथ मुझ पर था। कहे खुदावन का हाथ मुझ पर था, इसलिए लानतें मखूफ होती रही, जमीन पर गिरती रही, और मैं, मेरा घराना खुदावंद में बाबरकत है। आप समझेंगे नहीं शायद क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप साथ हैं, खुदा की कुदरत काम कर रही है। आगे क्या लिखा जरा प्लीज पढ़िए। खुदावन का हाथ मुझ पर था, खुदावन का हाथ मुझ पर था, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों से पूर्ण थी, हाँ, मुझे उतार दिया। मुझे उतार कर क्या किया खुदावन ने? और मुझे
उनके आसपास चौगिर्द ठहराया। वो जो हड्डियों से पुर एक जगह थी, उस हड्डियों की पुर जगह पर खुदा ने हमें उठाकर क्या किया? आसपास ठहराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत सूखी थी। हर वो हड्डी जो आपकी सूख चुकी है, आज नबूवत करता हूँ खुदा का खादम होने के नाते, वो चाहे कितनी भी हड्डियां हैं आपके आसपास, वो हड्डी आपकी नौकरी की हो सकती है, वो हड्डी आपकी औलाद की है, वो हड्डी आपकी स्ट्रगल की है, वो किसी भी चीज की हड्डी है, हर वो हड्डी आज नबूवत की कुव्वत से ताजा होगी, दम भरेगी, उस पर गोश्त चढ़ेगा, उस पर नसें आएंगी, और वो हड्डी जो सूखी थी गोश्त से भरी बाबरकत हो जाएगी। आगे क्या लिखा जी? और उसने मुझे फरमाया, क्या फरमाया? ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ए आदमजाद यानी हिजकिय्याह नबी, खुदा ने पूछा क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकेंगी? मैंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया उस नबी ने? ए खुदावन खुदा, ए खुदावन खुदा, तो ना खुदा नहीं, ए खुदावन, आवाज थोड़ी है, ए खुदावन, खुदावन, खुदा तू ही जानता है, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, क्या फरमाया? तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। आपकी बात थोड़ी है, अगर आप कलाम नहीं सुनना चाहते तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ। मेरा भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको टीके लगने, इंजेक्शन, शाम से मुझे फोन कर रहा है कि मुझे टीके ला कर दे दे, इंजेक्शन जो ड्रिप लगनी है वो मुझे ला कर दे दे, तो मैं वो लगवा लूं। मैं वहां नहीं गया सिर्फ आपको कलाम सुनाने के लिए। अगर आपको यहाँ पर बैठ के एंजॉय करना है तो आप अपने घर में जाकर एंजॉय करें आराम से, प्लीज। मैं नबूवती कलाम खुदा से लेके आया हूँ, ये मैंने देकर जाना है, लेकिन जो आप बीच में ये डफरपुना कर रहे हैं सॉरी अल्फाज के लिए, ये प्लीज मत करें आप खुदा की हजूरी में। मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने भाई को मरता मामा में छोड़ के आया हूँ सिर्फ कलाम सुनाने के लिए। अगर यकीन नहीं है तो जाके हिलाल अहमद हॉस्पिटल में देख लो उसकी हालत। आपको मजे की लगी हुई, आपको नहीं सुनना कलाम, मुझे समझ नहीं आता। कहीं होगा ना, कहीं को समझ नहीं आता, वो कहते हैं यहाँ किताब खोली, नहीं समझ आ रहा ना सुने, रिकॉर्ड हो रहा, मैं कहा जाके मैं आप ही सुनाऊंगा। नहीं समझ आ रहा कौन सी किताब खुली हुई, टोर जाओ। अगर फिर भी बैठना है ना समझ के तो खुदा आपको बरकत दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम बाबरकत हैं, हम बाबरकत हैं। पर आगे क्या हुआ? फिर उसने मुझे फरमाया, फिर उसने मुझे क्या फरमाया? तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, इन हड्डियों पर नबूवत कर, इन हड्डियों पर नबूवत कर। आज हर वो नबूवत जो मुझ पर होती है, मेरी हड्डियों पर है, मेरे घरानों पर होती है, कहे खुदा में जल्द पूरी होगी। आमीन। आगे बढ़। और इनसे कह, इनसे क्या कह? ऐ सूखी हड्डियों, सूखी हड्डियों, सूखी हड्डियों, सूखी हड्डियों। मेरे साथ बुलंद आवाज से कहे हर वो सूखी हड्डी, आवाज थोड़ी, कहे हर वो सूखी हड्डी जो सूख चुकी है, जो सूख चुकी है, कहे आज इस कलाम से ताज़ा होती है, बाबरकत होती है, नहीं होती है। आमीन। आगे आगे बढ़ जरा। ऐ सूखी हड्डियों, ऐ सूखी हड्डियों, ऐ सूखी हड्डियों। मेरा खुदा आज हर एक सूखी हड्डी आप में से निकालता है और नई हड्डी आती है, नई हड्डियां पैदा होती है। आगे खुदावन का कलाम सुनो, खुदावन का कलाम सुनो, खुदावन का कलाम सुनो। क्या कहता है खुदावन का कलाम? खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। ये नबूवत आपके लिए है। क्या फरमाता है? मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा, मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा, मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा। आगे और तुम जिंदा हो जाओगी। हर वो मुर्दा चीज जो आपकी है आज नबूवत करता हूँ जिंदा हो जाए यीशु के नाम में, जिंदा हो जाए, मुर्दा बरकतें जिंदा हो जाए।
یہ باپ گھر میں جب آپ پڑھیں گے جا کر, یہ ایک لیول ہے پروفیسی کا کہ نبوت کے کیا سٹیٹس اور کیا لیول ہو سکتا ہے. آپ زندوں پر نبوت کرتے ہیں. حزقیل نے مردوں کی ہڈیوں کا جو سورما بن چکا تھا ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کی, اور خدا صرف حزقیل کو لے کر ہی وہاں اس لیے گیا تھا تاکہ نبوت کے سٹیٹس, نبوت کے لیولز پتہ ہو سکے کہ خدا اگر کسی کو مارتا ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ ہڈیاں واپس بھی جڑ سکتی ہیں. اگر آپ بے برکت تھے آج تک تو خدا آپ کو بابرکت پھر سے کرنا جانتا ہے. اگر آپ کسی چیز سے آسودہ تھے تو خدا آپ کی زندگی میں پھر سے نئی روشنی کو پیدا کرنا جانتا ہے. اور اس لیے زبور میں لکھا کہ خدا کا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے راہ ہے. ہاللویا. کیا لکھا آگے؟ اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا, اور تم میں نسیں پھیلاؤں گا, آگے اور گوشت چڑھاؤں گا, اور تم کو چمڑا پہناؤں گا, اور تم میں دم پھونکوں گا, تم میں دم پھونکوں گا. آج ہر وہ زندگی جو مردہ ہو چکی ہے اس کی زندگی میں پروفیٹکلی طور پر, نبوتی طور پر دم آتا ہے, اور وہ دم زندگی کا آتا ہے اور نئی زندگی جاری ہوتی ہے, جاری ہوتی ہے. ہاللویا. آگے کیا لکھا؟ اور تم زندہ ہوگی, تم زندہ ہو جاؤ گی, اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں, میں جانو گی کہ میں خداوند ہوں. اور آواز کاٹ لو خدا دا آواز سارے پتہ نہیں کیڑی دنیا جو تسی آئی ہو مینوں تو تہاڈی سمجھ کوئی نہیں. جانو گی کہ میں خداوند ہوں, میں خداوند ہوں, میں خداوند ہوں, یسوع ہی خداوند ہے. تو تیرا گھرانہ نجات رہا, یسوع نام پر نجات لے کر آ تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی خداوند ہے. ہاللویا. آگے کیا لکھا؟ نہیں کیا کہتا ہے کہ تم جانو گی کہ آج کے بعد ہر وہ چیز جو آپ کے خلاف ہے جان جائے گی کہ اسرائیل کا خدا کون ہے. آج کے بعد ہر وہ ہاتھ جو آپ کی طرف لعنت کے لیے بڑھا ہوا ہے, بیماری کے لیے بڑھا ہوا ہے, یہ جان جائے گا کہ اسرائیل کا ایک ہی خدا ہے, اور اس کے بیٹے کی قبر خالی ہے, اور اس کی دلہن اس کے منتظر میں ہے, اور دلہا ہمیں ساتھ لے کر جائے گا. آگے کیا لکھا؟ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی. حزقیل کہتا ہے مجھ پر ایک نبوت آئی, مجھ پر ایک نبوت آئی. حزقیل کہتا ہے مجھ پر ایک, اور نبوت کے حکم کو, ہاں جی, نبوت کے نبوت کے حکم کو مان کر میں نے نبوت کی تو نبوت پوری ہو گئی. جب آپ نبوت کو مانتے ہیں تو نبوت پھر آپ کی زندگی میں پوری ہونے لگتی ہے. اور نبوت کرتا ہوں آپ بہت جلد بڑھ جائیں گے, آپ اپنے خاندان میں سب سے الگ نظر آئیں گے. اور آج نبوت کرتا ہوں یسوع کے نام میں اس ابلیس کے خلاف جو خوابوں میں پریشان کرتا ہے, جس کو پریشان کرتا ہے ہاتھ رکھ لو. یسوع کے نام میں ہر طرح کے گندے خواب, ابلیس جو پکڑ کے رکھتا ہے ناپاکیت کے اس ہتھیار کو, یسایہ 54:17, ہر وہ ہتھیار جو ناپاکی کا ہے اور خوابوں میں کام کرتا ہے, چھوڑ ان کو یسوع کے نام میں, چھوڑ ان کو یسوع کے نام میں. اور نبوت کرتا ہوں آج کے بعد ان خوابوں کا زور ٹوٹتا ہے یسوع کے نام میں, اس گندگی کا زور ٹوٹتا ہے یسوع کے نام میں, زور ٹوٹ جاتا ہے, بیماریوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے, ناپاکی کا زور ٹوٹتا ہے. آمین. آگے پڑھ کے کیا ہوا؟ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی. کیا نبوت کی؟ اور جب میں نبوت کر رہا تھا, اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا, ایک شور ہوا, کوئی بھی نہیں ہویا, ایک شور ہوا, ایک شور ہوا, ایک شور ہوا, ایک ایویں نا شور ہویا. آپ شور نہیں کرنا چاہتے, ایک ایک کیا شور ہوا؟ اور دیکھ زلزلہ آیا, زلزلہ آئے گا لیکن ہم
अपनी जगह पर ही रहेंगे। इब्लीस के खड़े किए हुए हर एक शत्रु उस ज़लज़ले में आज गिरा दिए जाएंगे। इब्लीस की खड़ी की हुई चीजें आज उस ज़लज़ले में ढा दी जाएगी, ढा दी जाएगी। आमीन। और हड्डियां आपस में मिल गईं। पता नहीं कौन सी हड्डी किस कोने में थी। एक नबूवत हुई, हड्डियों ने नबूवत को सुना, इंसानों ने नहीं। हड्डियों ने, मुर्दा हड्डियों ने नबूवत को सुना। और जिस जिस हड्डी ने उस नबूवत को सुना, उस वक्त ना कोई साउंड था, ना कोई ऐसे बड़े स्पीकर थे, ना माइक थे। हिजकिय्याह की आवाज में खुदा की आवाज राज कर रही थी उस कब्रिस्तान पर। आज खुदा की आवाज इस आवाज में से होकर राज करे आपके ऊपर, आपके घराना पर, और ज़लज़ले आए और खुदा हिला कर रख दे हर एक चीज को। Let us shake nations in Jesus name. एक वक्त आएगा, the Holy Fire Church कौमों में, कबीलों में इब्लीस के बुर्जों को हिला देगा जाकर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कौमें, कबीले हिलाई जाएंगी यीशु के नाम में, इस चर्च के वसीला से, आपके वसीला से। आमीन। आगे। और हड्डियां आपस में मिल गईं। जो मिल नहीं सकती थी आपस में मिल गई। हो सकता है हिजकिय्याह ने सिर्फ सोचा था कि आज एक दो मुर्दा ही सिर्फ जिंदा होएगा, लेकिन हिजकिय्याह ने अपनी नहीं कहा, खुदा मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। अपनी नहीं, लेकिन उसकी मर्जी से पूछा तो खुदा ने कहा कर नबूवत, और वे केड़ी हड्डी किथे न किथे मिलती है। हर वो लड़ी जो आपकी बरकत थी टूट चुकी है बहुत सालों पहले और अभी तक जुड़ी रही, तो बाबरकत और खुश हो जाइए। आज से वो हड्डियां और लड़ियां जुड़ दी है, जुड़ दी है। नबूवत करता हूं हड्डियों के लिए जो आपकी है और बाबरकत और जुदा जुदा है। आज उनके मिलने का, जुड़ने का वक्त आ पहुंचा है। आमीन। आगे क्या लिखा? हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। हाँ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ? नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए। आगे। और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई। आगे। पर उनमें दम ना था। उनमें दम ना था। उनमें दम ना था। दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया, क्या कहता है? कि नबूवत कर। दूसरी नबूवत है। पहली जो नबूवत का लेवल था वो हड्डियों के ऊपर गोश्त तक का था, नसों तक का था। कुछ नबूवतें होती हैं जो आपको एक वक्त तक मिलती हैं, लेकिन एक वक्त आता है खुदा उस प्रोफेटिक लेवल का जो लेवल है, जो म्यार है, उसको बढ़ा देता है। पहला उसका म्यार था हड्डियों के ऊपर गोश्त, गोश्त पर नसें और चमड़ी चढ़ना, पूरा इंसान तैयार। क्यों? पैदाइश में खुदा ने मट्टी से इंसान को क्यों बनाया? खुदा ने नबूवत क्यों नहीं की? क्या खुदा नबूवत नहीं कर सकता था? लेकिन खुदा ने मट्टी से बनाया। खुदा चाहता है नबूवत हम में से जारी हो और खुदा उस काम को बाबरकत करे, खुदा उस काम को करे। आगे क्या लिखा है? तब उसने मुझे फरमाया, क्या फरमाता है? कि नबूवत कर। नबूवत कर। नबूवत कर। हाँ। तू हवा से नबूवत कर। तू हवा से नबूवत कर। पहले इंसान तक की बात थी। ये जो नबूवत होनी थी, ये इंसान, पता है आपको, नेचुरल है, आम है। लेकिन हवामा, फिजामा, ये आम नहीं है, ये सुपर नेचुरल है। खुदा इस चर्च को अथॉरिटी दे, सुपर नेशनल अथॉरिटी दे। खुदा इस चर्च को सुपर नेशनल नबूवतों की अथॉरिटी दे। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा आपके चर्चों को, आपके खादमों को, मुझे, इस चर्च को सुपर नेशनल अथॉरिटी दे। आमीन। बाइबल में सुपर नेशनल अथॉरिटी यीशु के पास तो थी ही थी। यीशु ने कहा हवा बंद हो जाए, तो हवा बंद हुई कि नहीं हुई? तूफान थम जाए कश्ती में, थमा कि नहीं थमा? बाइबल में उससे पहले जो कि खुदा ने मूसा के हाथ में सुपर नेचुरल अथॉरिटी दी। खुदा ने कहा आसा मार,
اور پانی بیچ میں سے دو حصے ہو جائے. پانی نیچرل نہیں ہے لیکن پانی سپر نیچرل ضرور ہے. خدا نے ایلیا نے کہا آسمان بند ہو جائے گا. آسمان نیچرل نہیں ہے, آسمان سپر نیچرل ہے. خدا ہمارے وسیلے سے نیچرل ہی نہیں بلکہ سپر نیچرل کام کروانا جانتا ہے, سپر نیچرل چیزیں کھلوانا جانتا ہے. آمین. تو ہوا سے نبوت کر ہاں اے آدم ذات, اے آدم ذات, اور ہوا سے کہہ کیا کہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے ہاں. کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ, اے دم تو چاروں طرف سے سوچیں آ. اس دن کیا ہوا ہوگا جو ہوا جو صرف ایک سائیڈ کی چل رہی ہوگی, چاروں دشاؤں سے ہوا ایک ہی جگہ پر, سامنے سے, ادھر سے, پیچھے سے, اس طرف سے, بیچ میں آئی ہوگی. اور کتنا بڑا وہاں پر ایک طوفان آیا ہوگا. اس ہوا کے طوفان نے ان مردوں میں زندگی کا دم پھونکا. آگے پڑھنا ذرا کیا ہوا. اور ان مقتولوں پر پھونک, ان مقتولوں پر پھونک, ان مقتولوں پر پھونک. آپ کی اور میری ہوا یہ ہے. لیکن اس دن حزقیل کی جو پھونکنے کی ہوا تھی نا, وہ چاروں دشاؤں سے ایک جگہ پر تھی, اور ایک جگہ پر اکٹھی ہو کر نا صرف حزقیل کے حکم کا ویٹ کر رہی تھی. یہ ہمیں حکم دے اور ہم چاروں طرف سے ان مردوں کے اندر جائیں. آپ حکم دیں گے سپر نیچرل خدا کام کرے گا. یسوع مسیح ناصری کے نام میں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اے دم تو چاروں طرف سے آ, ہاں. اور ان مقتولوں پر پھونک ہاں. کہ زندہ ہو جائیں, یہ کیا ہو جائے؟ زندہ ہو جائیں. آپ نئی زندگی کو دیکھیں گے یسوع کے نام میں. نئی زندگی آپ کی ہوگی, آمین, آپ کی ہوگی. آمین. کہیں نئی زندگی میرے گھرانے کی ہے اور میں نبوت کرتا ہوں. ہم زندگی پا جائیں گے, ہم زندگی پا جائیں گے یسوع کے نام میں. آمین, آمین. یہ تو حزقیل کی بات کی ہے میں نے. سپر نیچرل نبوت کا لیول بات کر رہا ہوں میں وہ بات نہیں کر رہا تینوں برکت ملے ان. سپر نیچرل, سپر نیچرل مطلب آپ ہواؤں کو بولیں ہوائیں کام کریں, آپ آسمان کو بولیں آسمان کھل جائے. پہلے پرانے عہد نامے میں جس کے اوپر خدا کا روح آتا تھا, یہوہ کا, صرف وہ سپر نیچرل کام کرتا تھا. لیکن جس دن سے یسوع نے آسمان کھول دیا نا, سپر نیچرل ہر کوئی نبوت کر سکتا ہے. متی کی انجیل اس کا 16 نمبر باب اور اس کی 17 نمبر آیت میں خدا یسوع مسیح نے کیسی نبوت دی. اس کے بعد ہم نیچرل نہیں بلکہ سپر نیچرل پروفیٹکس کو بولتے ہیں, بلکہ لیتے ہیں, بلکہ وہ پورے ہوتے ہیں یسوع کے نام میں. پڑھیے ذرا. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, یسوع نے جواب میں کیا کہا اس سے؟ مبارک ہے تو شمعون بریونا, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی. یہ بات گوشت اور خون نے نہیں. نہیں, دوبارہ پڑھنے ذرا, دوبارہ پڑھیے. کیا لکھا؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا مبارک ہے تو, مبارک ہے تو, مبارک ہے تو, نہیں, لانتی ہے تو. کیا ہے تو؟ مبارک ہے, کیا ہے؟ مبارک ہے. برکت کی نبوت آپ ہر جگہ پر دیکھیں گے. مبارک ہے تو شمعون بریونا, ہاں, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں. یہ بات گوشت اور خون نے نہیں. یسوع نے کہا یہ بات جو حزقیل نے مردے زندے کیے ہیں انہوں نے نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے. ایک ایسی نبوت جاری ہوئی اس دن پترس پر, جو کہ گوشت اور خون نے, مطلب پترس نے خود نہیں کی, آسمان سے سپر نیچرل, آسمان پر صرف نیچرل نبوت ظاہر ہوئی کہ تو خدا کا بیٹا ہے. یہ سپر نیچرل بات تھی. آگے کیا ہوا پڑھنا. تجھ پر ظاہر کی, تجھ پر ظاہر کی, مطلب اب یہ نیچرل بات تو رہی نہیں. اگر یہ گوشت اور خون نے جاری کی ہے بات تو اس کا مطلب یہ سپر نیچرل نبوت جاری ہوئی ہے. اور یسوع کیا نبوت دیتا ہے؟ پڑھیے ذرا. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں, اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں, یہ یسوع کی نبوت ہے. ذرا سنیے, میں بھی تجھ سے کہتا ہوں, آواز کر لو, خدا دا آواز کا جے. میں بھی تجھ سے کہتا ہوں, میں بھی تجھ سے کہتا ہوں, میں بھی
तुझसे कहता हूँ, पूरा बोलो। फिर बोलो, बोलते जाओ, और बोलते जाओ, मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ क्या कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, तू पतरस नहीं 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 नहीं, अपना नाम लेना तू, अपना नाम लेना नहीं, बोलती नहीं तू कुड़िए, अपना नाम लेना तू, आगे बैठ के मुंह खोल पुत्र थे घूंगे नहीं मुंह बसा तू 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 हाँ और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया आज बनाऊंगा। तक जिस चर्च को आप पत्थर की सूरत में देखते थे, आज तक जिस चर्च को आप टूटे हुए की सूरत में देखते थे, इस चर्च में जबरदस्त कलीसिया बन जाएगी। हालेलुया। और आलमे रवा के दरवाजे मतलब जहन्नम के दरवाजे, जहन्नम की बदरू हैं, जहन्नम की लातें उस पर गालिब ना आएंगी, कहे मुझ पर गालिब ना आएंगी। नेचुरल नबूवत नहीं देने आया, सुपर नेशनल आसमान को खोलता हूँ आप पर, सुपर नेशनल बरकत देता हूँ, सुपर नेशनल अनॉइंटिंग के साथ नई नबूवतें जारी होती हैं। जहन्नुम के दरवाजे, जहन्नुम की लानतें, जहन्नुम से बोली गई हर तरह की नबूवत, शैतान भी नबूवत बोलता है। शैतान ने यीशु से कहा ए बट्टे ने इन्हां बट्टियां नूं कह के की बन जाना, नबूवत नहीं सी है। और बोलो है सी कि नहीं? ये नबूवत थी जो शैतान ने बोली। शैतान ने बोला अच्छा तू इन्ना है ते अपने आप को थल्ले टेक दे, लिखा है। ये कलाम की नबूवत शैतान ने बोली, इसलिए मेरा टॉपिक था कलाम से नबूवतें। शैतान कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे पांव को ठेस ना लगेगी और तेरे फरिश्ते तुझे उठा लेंगे, तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। फिर उसने और कुछ बोला। शैतान भी नबूवत करता है, लेकिन यीशु ने कहा हर वो लानत, हर वो दरवाजा जो जहन्नुमी है, यीशु के नाम में आप पर गालिब ना आएगा, आप पर गालिब ना आएगा। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, कितने डैश हैं वो लोग जो आसमान की कुंजियां मतलब बादशाहत के ऊपर आमीन नहीं बोला। दोबारा पढ़ना जरा। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, खलो जाओ अपने अपने पैरों में, जिन्हें बैठे थोड़ा दिमाग को नहीं बांधते, जरा खलो अपने अपने पैरों में खलो जाओ। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, आसमान की बादशाही की कुंजियां, आसमान की बादशाही की कुंजियां आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, तुझे दूंगा, दूंगा नहीं, बल्कि खुदा ने दे दी है। आसमान की एक ही चाबी है जो है उसकी सलीब। सलीब को देखो, चाबी नहीं, सलीब को देखो तो सही। अगर मैं पीछे नू फड़ा तो चाबी नहीं, तो आसमान इस चाबी से खोला है यीशु ने, और ये खुला है और आज के बाद कभी बंद ना होगा। और आप और मैं बाबरकत है। आगे तुझे दूंगा, हाँ। और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, नबूवत से बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। तो मैं आज बांध देता हूँ हर तरह की नेचुरल सुपर नेचुरल कुव्वत को जो आपके खिलाफ है, वो बन जाती है जमीन पर, आपके घरानों पर और आपके हर तरह के अकाउंट्स पर। और आज के बाद वो बंदी रहेगी यीशु के नाम से, जब तक यीशु नहीं आ जाता। और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा, हाँ। वो आसमान पर बंधेगा, हाँ। और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा, जमीन पर खोलेगा, और जमीन पर खोलेगा। आपकी बरकतें खुदा खोलता है, नबूवत करता हूँ। आपकी बरकतें खुदा खोलता है, नबूवत करता हूँ। यीशु के नाम में नबूवत करता हूँ, आपकी बरकतें खुल जाए हैं। और नेचुरल है जमीन, लेकिन आसमान जो सुपर नेचुरल, यीशु कहता है नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों खुलता है यीशु के नाम से। जल्दी आई पुत्र, जल्दी आई, मेरे को इतना टाइम कोई नहीं हो, मैं जाने आई, मेरे को बड़े काम नहीं। खलो जाए तो खलो जाए।
काश आपके हस्बैंड आए होते तो पूरी नबूवत हो जाती, लेकिन खुदा नज़दीक और दूर का है। आपकी जिंदगी पर जो कुछ नेचुरल, इधर देखते रहा पुत्र, नेचुरल बंद था, शैतान ने बांध के रखा हुआ था, आज ये सुनसी करता है आदू का आसमान दोनों। आज तेरी जिंदगी में, तेरे शौहर की जिंदगी में नेचुरल भी खुलता है और सुपर नेचुरल भी खुलता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज के बाद तू बाबरकत होगी, तेरी गरीबी खुदा ने देखी है, तुझे देखा है किस तरह से इब्लीस तुझे वर्गला रहा है, मैं हर एक चीज को देख रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से बांध देता हूँ बदरूहों को, यीशु के नाम से, तेरे घराने से, तेरे शौहर से, तेरी बेटी से, और हर वो चीज जो किसी भी तरह से तुझे डिस्टर्ब करती है, आज लानती होकर नीचे गिराई जाती है, नीचे गिराई जाती है। छोड़ इसको यीशु मसीह नासरी के नाम से, लीव इन जीसस नेम, लेके इसको वापस खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज से नया खिलनापन तेरी जिंदगी में आए और तू बाबरकत हो, यीशु के नाम में तू बाबरकत हो, और हर चीज जो पकड़ी गई है आज आजाद है यीशु मसीह नासरी के नाम से। जाने दे पीछे यार, लेके आ वापस। अब दुआ करना अपने हाथों को उठाकर। क्या लिखा बाइबल में? और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। लेकिन अंजील में एक जगह पे लिखा है, जो कुछ तू जमीन पर खोलता है आसमान उसे खोलता है। बाइबल क्या कहना चाहती है पता है? आप सिर्फ नेचुरल करते हो, यीशु सुपर नेचुरल कर देता है। होता तेरी जिंदगी में सुपर नेचुरल यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आपकी जिंदगी में भी सुपर नेचुरल होता है। ये नबूवत का कलाम आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ता है। आप बाबरकत हैं, जितने भी हो आप बाबरकत हो, आप बाबरकत हैं, आपके घराने बाबरकत हैं। जो कुछ जमीन पर मैं खोलता हूँ, नेचुरल खोल रहा हूँ, मेरा यीशु अथॉरिटी से उसको सुपर नेचुरल खोल देगा। बच्ची छोड़ के इधर जल्दी से, सुपर नेचुरल को खुल जाएगा यीशु के नाम में। इधर छोड़, यीशु के नाम में। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे तू है, तेरे काम तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कोई नहीं। खुदा ने मुझे खादम पता क्यों बनाया है? मैं लोगों को बरकत दे सकूं, ना कि इसलिए कि मेरे अपने जब बीमार हो तो मैं उनको हॉस्पिटलों में लेकर भागता रहूं, ना कि इसलिए कि जब मेरे मरे तो मैं उनको कलाम सुनाने की जगह मैं उनको दफनाने के लिए जाता हूं। यह जगह दुनियावी तौर पर ठीक लगती है, लेकिन जब आपके ऊपर आसमान की तरफ सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग है, अगर मैं इसको जाया करूं कि मेरा ये बीमार, मेरा वो बीमार, मेरी हानि रह गई, मेरा ये रह गया, वो सुपर नेचुरल नहीं, मैं हंसना तो ना होता नहीं बेटा, समझाया सी, वो सिर्फ फिर नेचुरल रह जाती है, सुपर नेचुरल नहीं रहती। खुदा तुझे बढ़ाएगा खिदमत में, तू बढ़ना चाहती है, खुदा तुझे बढ़ाएगा, खुदा तेरी जिंदगी में जरूर काम करेगा। कुछ वक्त रुक, आज तुझे अनॉइंट करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब तू आई थी खुदा ने मुझे तेरे बारे में बताया था, आज से एक नई कुदरत तेरी जिंदगी में काम करती है, लेके इसको वापस लेके तू है अजीम, तेरे नाम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं। आज ये तेल जो तेरे ऊपर आता है, ये परफेक्टली नीचे उतर रहा है, ये इस बात का सबूत है कि आसमान से नबूवती, नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों
वो तेरी जिंदगी में काम करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज नेशनल तौर पर अनॉइंटिंग, बल्कि सुपर नेशनल तौर पर भी नेचुरल और सुपर नेचुरल यार इतने आएगा तो वो पता चलेगा मैं तेल पाया है और उतने मैं नबूवत करने हैं और फिर नजर आएगा कि प्रोफेटिकली तेल उसकी नजर उसके ऊपर से नीचे आ रहा है। खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तू है तेरे नाम सबसे अजीम, तेरे जैसा। अगर आज मैं ये सोचूं ना कि मैं थोड़े लोगों में मैं काम ना करूं, मैं कलाम ना सुनाऊं, मैं थोड़ा थोड़ा, जो थोड़े में दयानतदार रहता है खुदा उसको बथेरा देता है। बथेरों का मालिक होगा मेरा खुदा और खुदा मेरा चरवाहा यीशु के नाम में। और ये प्रोफेटिकली तेज जो तेरे ऊपर से आ रहा है तुझे आज नहीं अनॉइंटिंग देता है ना। तू है अजीम, तेरे टोले टोले वाले की थे वो सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा अपने हदिये निकाल के रखें। इसी गीत के दौरान अपने हदिये याद हम देंगे। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अजीम, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा
मैं मीटिंग जल्दी भी खत्म कर दूंगा, मैनू कोई नहीं है, लेकिन हूँ मैं जल्दी नहीं खत्म करनी। आप आए नहीं आए तो फिर भी आए, मैं जल्दी नहीं बरकत जे लैने जे दरवाजे जे खलवाने जे, मैनू गिला होन दिया करो। मैं आपको बात सच्ची बताऊं, मैनू बोलन दिया करो। फिर तुसी आप कलाम कराते हैं अपनी मर्जी से, छोटा करी छोटा, मैं छोटा करके जल्दी और की हो जाएगा। हफ्ते जो 2 दिन खुदा से बाद हो गए 2-2 3-3 घंटे की फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। और हम कहना चाहते हैं तू पवित्र तू जलानी से पहले सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा दुआ की थी, मैं ज़्यादा नहीं बैठ सका। मैंने आज खुदा मेरे तो नहीं गुलाम होना, मैं बहुत थक गया कल परसों से। खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे नाल ही जाऊंगा। मुझे बोलता है वो कभी भी झूठ नहीं होता। खुदा नज़ीम, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। लश्करों तरफ कौमों कबीलों के खुदा, और इस वक्त मैं आपके आसपास जितने भी लोग खड़े हैं रूहानियत में, इतनी की अनॉइंटिंग देख रहा हूँ, और वो अनॉइंटिंग आपके साथ चिपक चुकी है, आपको घेर चुकी है। खुदा मैं शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तेरे मस्सा, तेरे जलाल, तेरी अनॉइंटिंग के लिए खुदा जो तू हमें देता है। बढ़ा बरकत दे, चर्च का काम खुदा कल होने को है, मुझे खुदा तरले ना करने पड़े। अगर कोई अपना सामान बेचना चाहता है उसको बेचने दे मेरे खुदा। खुदा को लाकर लोग दें, कल से काम शुरू है, इनके दिलों में काम कर खुदा, ताकि ये जान सके मैं खुदा मांगने वाला नहीं, मेरा खुदा देने वाला है। आमीन। ये महसूस कर सके खुदा, अपने खादम का ख्याल कर सके कि मुझे मांगना ना पड़े, भिखारी ना बनना पड़े, ये खुद तुझे ला कर दे मुझे खुदा, ताकि हम तेरे घर का काम कर सकें। आसमानी बाप लश्करों के रब, इनकी जिंदगियों में काम कर। ये जो कुछ भी मैं नबूवत करता हूँ, जिसने जो कुछ भी खुदा को दिया है, खुदा उसका 10 गुना 20 गुना बढ़ाकर इनको दे। जिसने जो कुछ भी खुदा ने दिया है 20 गुना बढ़ाकर खुदा आपको देगा, 20 गुना बढ़ाकर खुदा आपको देगा। यीशु के नाम से ये नबूवत आपकी जिंदगियों में डालता हूँ। आमीन। खुदा जिन लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, शुक्रगुजारी, तारीफ, तमजीद करते हैं, बरकत। और जिस तरह हमें सिखाया गया, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे बड़े शुक्र होंगे, और जिस तरह अपने कोई सारे के केस माफ करते हैं, तो हमारे कोई हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि प्राइस से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं। आमीन।